اس کامیابی کو ہم دراصل اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ سرکار سرکاہی کے فیضان کا بادل جب برستا ہے تو جلسہ کامیابی کی نئی نئی منزلیں اسی طرح ڈھونڈتا ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام مسلمانان اہل سنت، خاص طور سے مظہر اسلام کمیٹی کے تمام افراد کو اس شعر کے ساتھ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا۔ ارے آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رکھ دیجئے، سب رکھ دیجئے، ماشاءاللہ رکھ دیجئے۔ مجھے تو وہ شعر پڑھنا پڑ رہا ہے حسن نواز سیوانی جیسے تجربہ کار شاعر کے پڑھ لینے کے بعد کہ بہت ہی خوب، بہت ہی حسین رکھتے ہیں، وسیع عشق و وفا کی زمین رکھتے ہیں، ہر ایک شعر پہ پیسہ نکلنے لگتا ہے، یہ اے ٹی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں۔ اللہ حسن نواز سیوانی کو بہت دنوں تک زندہ رکھے تاکہ نعت رسول پاک یہ پڑھتے رہیں، زندگی بھر پڑھتے رہیں۔ اور میں تو ایک شعر حسن بھائی کو سناتا ہوں کہ بعد اجل بھی قبر میں پڑھنا نبی کی نعت، کہنا نظر میں حسن رسالت ہے کیا کروں، منکر نکیر پوچھیں جب یہ ماجرا ہے کیا، کہنا نبی کی نعت کی عادت ہے کیا کروں، کہنا نبی کی نعت کی عادت ہے کیا کروں۔ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، منبر شریف پر جماعت کا درد رکھنے والے، اپنے ایک دم ایک پھونک سے بڑے بڑے جنات شیطان خبیث کی ہوا نکال دینے والے، جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین ہندوستان میں موجود ہیں، پیر طریقت حامی اہل سنت حضرت شاہ سہیل احمد صاحب قبلہ صابری مدث اللہ العلی والنورانی، جو حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر محبت، شہر وفا، شہر سخن کلیر شریف روڑکی سے اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہیں، اور قوم مسلم کو نیا شعور، نئی ذہنیت، نیا خیال اور پسماندگی سے نکل کر بلند خیالی کی طرف لے جانے کا مزاج و شعور رکھتے ہیں۔ آج وہ منبر شریف پر بیٹھے ہیں، آپ ایسی شخصیتوں کے چہرے کی زیارت فرمائیں، اور انشاءاللہ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی محبتیں ہیں، بزرگوں کا کرم ہے، علماء کی آمد ہو گئی، اور منبر شریف پر علماء کے چہرے پہ مسکراہٹ کیا پیدا ہوئی کہ جلسہ ہمارا کامیابی بلکہ 100% کامیاب ہو گیا۔ اب ایسے وقت میں میرا وقت لینا مناسب نہیں ہے، ہر ذمہ دار اناؤنسر کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ مجمع جب تیار رہے تو نام لے کر نعرہ لگا کر بیٹھ جائے، اس لیے میں بلا تاخیر ادب اور احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کے ایک بالغ نظر خطیب جو اپنی زبان، اپنے فن، اپنی فکر، اپنی گہرائی اور گہرائی کے حوالے سے ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، کئی سالوں سے یہاں کے جلسے میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی دیکھا گیا ہے کہ ان کی تقریر سے جلسے میں لوگ اچھا تاثر حاصل کرتے ہیں۔ اس علاقے کا پڑھا لکھا طبقہ یہ کہنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ علامہ جنید جمالی نہیں بولتے، مفتی اعظم ہند کا فیضان بولتے۔ میں ان کا استقبال نعرے سے کر رہا ہوں، اور مائک والے کی بھی محنت کم نہیں ہے، سٹی ساؤنڈ سروس کی۔ کہا گیا ہے کہ یہ ظالم آگ اور پانی کا اکثر کھیل کرتا ہے، میں جس کو پاس کرتا ہوں وہ اس کو فیل کرتا ہے، یہ مٹی کا دیا تنہا تو روشن ہو نہیں سکتا، اجالے بانٹنے کا کام مٹیا تیل کرتا ہے۔ سٹی ساؤنڈ سروس کی خوبصورتی لائق داد ہے۔ عبد الوکیل مبارک پوری سے لے کر حسن نواز سیوانی صاحب کو آپ نے سماعت کیا، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں خطاب کرنے والے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں تقریر کرنے والے مولانا علامہ ابو الحقانی صاحب سے ملا، وہ تشریف لا چکے ہیں۔
اب میں علامہ جنید جمالی صاحب کا استقبال کرنے جا رہا ہوں. مجھے بتانا پڑے گا کہ نعرے کا جواب کیسے دینا ہے. نہیں نہ بتانا ہے تو آپ اپنی آوازیں بلند کر دیں, ان کی تقریر سنیں. نعرے تکبیر. لگتا ہے 5-10 منٹ مجھے اور وقت لینا پڑے گا, بتانا پڑے گا. حالانکہ غلامان تیغ علی کو بتانا نہیں پڑتا ہے, اس لیے کہ یہاں کا تار سرکاہی شریف کے گنبد سے جڑا ہوا ہے. میرا ایک پتہ ہے عبدالوکیل بھائی حسن نواز سیوانی صاحب کہ تیغ علی کے عشق کا معیار ہے الگ تھلگ, واللہ رنگ سیرت و کردار ہے الگ تھلگ. بھارت کے ہر مزار کا لے لیجئے چل کے جائزہ, سرکاہی کے مزار کا مینار ہے الگ تھلگ. سرکاہی کے مزار کا مینار ہے الگ تھلگ. علامہ جنید جمالی صاحب کا استقبال. نعرے تکبیر. ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ مجھے لگے کہ بیداری برقرار ہے. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت سرزمین پکڑی پکوہی علامہ جنید جمالی. نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر بولے گا, غلام حضرت پیران پیر بولے گا. کہو کہ وقت کے سلطان بھی رہے خاموش, کہ آج میرے نبی کا فقیر بولے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپریٹر صاحب ذرا سا ایکو کم کیجئے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحبیب العطوف الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غریبم یا رسول اللہ غریبم, ندارم در جہاں جز تو حبیبم. مرض دارم زیسیاں لا دوائے, مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو, گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. بڑی اچھی شاعری. شاعر اسلام حضرت عبدالوکیل مبارک پوری اور شاعر اسلام حضرت حسن نواز سیوانی سے آپ سماعت فرما رہے تھے. بہت خوبصورت انداز, بہت اچھی آواز, بہت اچھے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جا رہے تھے. آپ نے انہیں ملاحظہ کیا. نقیب ہندوستان شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ, جن کے خوبصورت اشعار سماعت فرما کر آپ حضرات باغ باغ ہو رہے تھے, جن کی شاعری الحمدللہ درجنوں شعرائے کرام پڑھا کرتے ہیں, لوگوں کو سنایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے.
صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا فیروز احمد قادری صاحب قبلہ ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں، دیگر علماء کرام بھی ممبر نور پر جلوہ افروز، میں سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ حضرات، میں چاہوں تو ایک ایک کا تعارف کراؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت آپ کے حوالے کروں۔ بس اتنا سنیں آپ کہ اس وقت ممبر نور پر جتنے ہیں وہ سب مجھ سے بڑے ہیں اور مجھ سے اچھے ہیں۔ حضرات، آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز عنوان کے محور پر کرنے کی سعادتیں حاصل کروں۔ اس سے پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے 4 مصرے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف۔ اگر آپ کو اپنا سبق یاد ہے تو آپ بولتے رہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں تقاضا نہیں کرتا، جو میرا کام ہے مجھے وہ یاد ہے اور وہ کام مجھے کر لینا ہے۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف، دیکھا تو دیکھا احمد مختار کی طرف، میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، میں نے دعا کی ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف، سرکار آ رہے تھے گنہگار کی طرف۔ کیوں دیکھتا میں حشر میں اغیار کی طرف۔ 4 مصرے اور ملاحظہ کر لیں، پھر گفتگو کا آغاز کروں کہ باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، سامنے فاطمہ زہرا کے دلارے رکھ دو، باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، سامنے فاطمہ زہرا کے دلارے رکھ دو، اور خیمہ آل نبی سے یہی آتی ہے صدا، پانی لائے ہو لے جاؤ کنارے رکھ دو، پانی لائے ہو لے جاؤ کنارے رکھ دو، باوضو کھول کر قرآن کے پارے رکھ دو، سامنے فاطمہ زہرا کے دلارے رکھ دو۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر گفتگو کروں، پکری پکوہی کے وہ تمام نوجوان جنہوں نے رسول اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا اور ان نوجوانوں کو جن لوگوں نے حوصلہ دیا، میں ایک ایک کر کا نام لوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام چھوٹ جائے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ میں پکری پکوہی کے تمام نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اپنے محبوب کے ذکر کی محفل سجانے کی آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کا وقت قطعی طور پر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں کرسی خطابت پر 20 منٹ لیٹ آیا ہوں، اور جب گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی رفتار بدل دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے، اس کا ڈرائیور یہ چاہتا ہے کہ میک اپ تھوڑا کیا جائے تو اس کو تیز چلانا پڑتا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا تیز چلوں، اگر تھوڑا بھی میک اپ ہو جائے تو بات بن جائے گی، اس لیے کہ آج ایک اہم شخصیت کی خطابت ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حضرات گرامی، پہلے میں یہ بتاؤں کہ رسول اعظم کانفرنس
کا انعقاد آپ نے کیوں کیا, ایسی محفل آپ نے کیوں سجائی, مقصد آپ کا کیا ہے, وجہ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. اچھا ایک بات یہ کہ آپ نے اگر سجا بھی لیا تو اس سے آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا اس سے کوئی فائدہ ہو تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ذکر رسول کی محفل سجائی تو ہمیں فائدہ یہ مل رہا ہے. محترم دوست اور بزرگوں, آپ یہ جواب دیں گے کہ مولوی تجھے معلوم نہیں ہے, کوئی لاکھوں روپے خرچ کر دے تو اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر پائے گا, اپنے بیٹی کی شادی میں ولیمے کی دعوت کرے تو بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے. یہاں تو ہر آدمی جمع ہو رہا ہے, بغیر دعوت کے چلا آ رہا ہے, بغیر انفارمیشن کے چلا آ رہا ہے, دعوت نہیں دی گئی, پوسٹر پڑھا چلا آیا. آخر یہ آنے والے کیوں آ رہے ہیں, ہم نے اپنے نبی کے نام کا جلسہ سجایا تو وہ چلے آئے. حضرات آپ کہیں گے اور کیا ہوتا ہے, تو آپ خود ہی جواب دیں گے کہ جب ایسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے محلے میں فرشتوں کا نزول ہو تو یہ کم بڑی بات ہے کیا. میں لیکن آپ سے کہوں کہ آپ اتنے ہی خوش فہمی میں مت رہیے, اور بھی آگے آپ سنیے کون لوگ آتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں یا آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے محلے میں پردھان منتری آ رہا ہے تو حضرات گرامی آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ چلو آ رہا ہے, ہم ان سے ملاقات کریں گے. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کے محلے میں نبی آ رہے ہیں تو کتنے خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اگر میں کہوں کہ نبی کے صحابہ آ رہے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور جس محلے میں نبی آ جائے, جس محلے میں نبی کے صحابہ آ جائے, وہ محلہ کتنا خوش نصیب ہوگا, وہ زمین کتنی خوش نصیب ہوگی. آئیے ہم پوچھتے ہیں, اپنے آئیڈیل سے پوچھتے ہیں, اپنے راہنما سے پوچھتے ہیں, اپنے مجدد سے پوچھتے ہیں, اے میرے اعلیٰ حضرت اس سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے تاکہ ہمارا حوصلہ آگے بڑھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کے گھر میلاد شریف کی محفل سجتی تھی. غور سے سنیے, تب گفتگو کا آغاز میں کروں گا. اسے آپ سن لیجئے کہ آپ جب نبی کے نام کا جلسہ سجاتے ہیں تو کون کون لوگ آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اپنے گھر ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد شریف کی محفل سجایا کرتے تھے. تقریر کرنے کے لیے کچھوچا شریف سے محدث اعظم ہند آیا کرتے تھے, تقریر کرتے تھے محدث اعظم ہند اور سنتے تھے مجدد اعظم. سبحان اللہ. تقریر کرتے محدث اعظم, سنتے تھے مجدد اعظم. اور جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا تھا تو محدث اعظم اپنے گھر میلاد شریف کی محفل سجاتے تھے, تقریر کرنے اعلیٰ حضرت جاتے تھے, تقریر اعلیٰ حضرت کرتے تھے, سنتے تھے محدث اعظم. محترم دوست اور بزرگوں, یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن ایک سال اتفاق ایسا ہوا, اعلیٰ حضرت کے گھر محفل میلاد النبی سج گئی ہے, تقریر کرنے کے لیے محدث اعظم نہیں آئے. سرکار کلاں کے والد گرامی سید احمد اشرف کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ تعالی تشریف لائے. آ گئے سرکار کلاں کے والد, آ گئے سید احمد اشرف کی چھوچوی. تقریر ہو رہی ہے, تقریر کرتے جا رہے ہیں, حدیث رسول بیان کرتے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ہر بار ہر مرتبہ محفل میلاد النبی میں بیٹھ کر تقریر سنا کرتے تھے, ادب سے ایک کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن آج کیا دیکھا جا رہا ہے, اعلیٰ حضرت کے گھر میلاد شریف کی محفل سجی ہے, حضرت سید احمد اشرف کی چھوچوی تقریر کر رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے کھڑے تقریر سنتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا, اعلیٰ حضرت کھڑے کھڑے تقریر سنتے جا رہے ہیں. آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں, آنکھیں نمناک ہو گئی ہیں. اعلیٰ حضرت روتے جا رہے ہیں, تقریر سنتے چلے جا رہے ہیں. چاہنے والوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے, ماننے والوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے, مریدوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے, متقدین نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. آج سے پہلے بھی اس گھر میں محفل میلاد النبی کی مجلس سجی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت بیٹھے بیٹھے تقریر سنتے تھے. آج کھڑے کھڑے سن بھی رہے ہیں, روتے بھی چلے جا رہے ہیں. کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی ہے, کوئی اذیت تو نہیں پہنچ گئی ہے. لیکن کسی میں جرت نہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھے, مجدد اعظم سے پوچھے کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں, روتے کیوں چلے جا رہے ہیں. تقریر ہوتی جا رہی ہے, محدث اعظم کی جگہ سید احمد اشرف کی چھوچوی تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं तो सुभान अल्लाह। तकरीर हो रही है, वो बातें हैं जो हदीस में बयान कर रहा हूँ। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है। दूसरी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु है। तीसरी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर है। चौथी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत उमर है। पांचवी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी उस्मान गनी है। छठी हदीस बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी मौला अली है। हदीस रसूल बयान करते चले जा रहे हैं, सहाबी का नाम लेते चले जा रहे हैं, तकरीर होती चली जा रही है। आला हजरत अश्कबार आंखों से सुनते जा रहे हैं। अब मजलिस बर्खास्त हो जाती है, सलाम व क़याम पर महफिल बर्खास्त हो जाती है, दुआ पर महफिल खत्म हो जाती है। जाने वाले चले जाते हैं, चाहने वाले रुक गए, मानने वाले रुक गए, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले रुक गए। आला हजरत का दामन थाम लिया। ए मेरे मुजद्दिद समझाइए, बात समझ में आती नहीं है, फलसफा समझ में आता नहीं है। ए मेरे इमाम समझाइए, आज से पहले भी आपके घर मिलाद शरीफ की महफिल सजी थी, बैठे बैठे सुना करते थे, अश्कबार आंखों से नहीं सुनते थे, मुस्कुराते हुए सुना करते थे। आज आपको देखा ये गया, तकरीर होती चली जा रही थी, आप सुनते जा रहे थे, अचानक आप खड़े भी हो गए, खड़े खड़े तकरीर सुनते रहे, फिर रोने भी लगे, रोते रोते तकरीर सुनते रहे। आखिर वजह क्या है? आप रो क्यों रहे थे? आप खड़े क्यों हो गए थे? आला हजरत का जवाब सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों जो मैं देखता हूँ तुम लोग नहीं देखते हो। सुभान अल्लाह। चाहने वाला ने पूछा, मानने वालों ने पूछा, ऐ मेरे मुजद्दिद फलसफा समझाइए, हम लोग क्या नहीं देखते हैं? आपने क्या देख लिया है? आला हजरत फरमाते हैं, सैयद अहमद अशरफ की छौचबी ने जैसे कि कहा, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा, मैंने देखा अबू हुरैरा तशरीफ ले आए। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने देखा कि अबू हुरैरा तशरीफ ले आए, हजरत अनस आ गए, अबू बकर आ गए, उमर आ गए, उस्मान गनी आ गए, मौला अली आ गए। जब नबी के सहाबा आ जाए, अहमद रजा बैठा कैसे रहता? अब सवाल पैदा होता है, ए मौलवी एक बात बता, उस जमाने में आला हजरत नहीं थे? थोड़ी सी दुआ फरमा दे आप। आला हजरत नहीं थे, कैसे पहचाना ये अबू हुरैरा है? कैसे पहचाना ये हजरत अनस है? कैसे पहचाना ये हजरत अबू बकर है? कैसे पहचान लिया ये हजरत उमर है? कैसे पहचाना ये उस्मान गनी है, ये मौला अली है? तो जवाब सुनो दीवाने का, आला हजरत अरे खैरे का नाम नहीं है, आला हजरत उस आशिक रसूल का नाम है जिसने अपने नबी को देखा है, अपने नबी को जाना पहचाना है। तो नबी की बारगाह में रहने वाले सहाबी को कहते नहीं जा रहे। अच्छा, अब इसके बाद भी अगर आला हजरत को आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बोलिए, नहीं समझ सकते, बस मान लीजिए आला हजरत को। सुभान अल्लाह, मान लीजिए आला हजरत को, इसी में कमाल है। अब आइए मैं अपने उन्वान पे गुफ्तगू करूं, इजाजत है? लेट आया हूं, थोड़ा तेज चलूंगा। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इससे पहले भी आपने मुझसे खिताब सुना है। आप जानते हैं इधर उधर की बात करने का आदी नहीं हूं। जो बातें सच्ची हैं, जो बातें हक हैं, मैं वही बयान करने की सआदतें हासिल करूंगा। कहीं पे अगर जुमले में तलखी हो तो आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन अगर उसमें सच्चाई हो तो आप उसे जरूर कबूल कर लेंगे, और कबूल करने के बाद उस पर अमल की तौफीक भी अल्लाह से मांग लेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, समझने की बात है। आप सोचते होंगे न जाने कितने लोगों से हम लोगों ने इस उन्वान पर तकरीर सुन रखा है। आज ये
नया मौलवी, ये मौलवी आज फिर वही बात करना चाहता है। मैं भी जानता हूँ, मैंने भी सुनवान पर ना जाने कितनी बार तकरीरें की होंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसी आयत करीमा की तिलावत किया है। इसलिए तिलावत मैंने किया है, आप तर्जुमा भी जानते हैं, आप उसकी तशरीह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बरकत हासिल करने के लिए फिर इसी आयत की तिलावत कर ली है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, अच्छों के साथ हो जाओ। अच्छों के साथ रहने की बात हो रही है, अच्छों के साथ रहिए, सच्चों के साथ रहिए, नेकों के साथ रहिए। मेरे एक एक जुमले को आप सुने, मैं सिर्फ 30 मिनट आपके दरमियान हूं, गौर से सुन लीजिए। अच्छों के साथ रहिए, सच्चों के साथ रहिए, नेकों के साथ रहिए, तहज्जुद गुजारों के साथ रहिए, तकवा शियारों के साथ रहिए, वफा शियारों के साथ रहिए, नमाजियों के साथ रहिए, हाजियों के साथ रहिए, गाजियों के साथ रहिए। अच्छों के साथ रहना है, बुरों के साथ नहीं रहना है, शराबियों के साथ नहीं रहना है, जुआरियों के साथ नहीं रहना है, मक्कारों के साथ नहीं रहना है, गुस्ताखों के साथ नहीं रहना है, गद्दारों के साथ नहीं रहना है। अच्छों के साथ हमें रहना है, सच्चों के साथ हमें रहना है, अमल करने वालों, अच्छे अमल करने वालों के साथ रहना है, अल्लाह वालों के साथ रहना है, अहलुल्लाह के साथ रहना है, अल्लाह की पहचान कराने वालों के साथ रहना है, अल्लाह के वलियों के साथ रहना है। और जानते हो, अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो क्या होगा, अच्छों के साथ रहोगे तो क्या होगा, सच्चों के साथ रहोगे तो क्या होगा। इस उन्वान पर बड़ी लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं आपसे एक बात बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहूंगा। अल्लाह वालों के साथ रहिए, सच्चों के साथ रहिए, औलियाए किराम के साथ रहिए। आप कहेंगे उनके साथ रहने से क्या होगा, वो नमाज पढ़ते हैं तो क्या उसका फायदा हमें मिलेगा, वो रोजा रखेंगे तो क्या हमें उसका फायदा मिलेगा। मैं कहूंगा सुनो, अच्छों के साथ रहोगे अच्छे हो जाओगे, सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चे हो जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो जन्नत चले जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के साथ रहोगे आप जन्नत चले जाओगे। आप कहेंगे मौलवी बड़ी अजीब बात कर रहा है, तो सुनिए, मैं देर नहीं करना चाहता, बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुंचना चाहता हूं। असहाबे कहफ का वाकया तो आपने सुना होगा, उलमाए किराम बयान करते रहते हैं, जिसका तस्करा कुरान में हो चुका है। असहाबे कहफ का तस्करा हुआ है, अब सूरत का नाम ही कहफ रख दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़े इख्तिसार के साथ उस बात को बयान करके मैं आगे बढ़ना चाहूं। हजरात, उस जमाने में एक बादशाह था, जिस बादशाह का नाम था दिकियानूस। वो दिकियानूस बादशाह बड़ा जालिम बादशाह था, वो अपनी रियाया पे बड़ा जुल्म करता था, बड़ा लोगों को सताया करता था। उसकी रियाया तंग आ चुकी थी, लोग उससे आजिज आ चुके थे, तो पता लोगों ने फैसला लिया, अगर इसके जुल्म से बचना हो, अगर इसकी शरारत से बचना हो, अगर इसके सितम से बचना हो, तो इसकी सरहद पार करके चलो, यहाँ से दूर चले जाओ, इसका मुल्क छोड़ कर चलो, इससे दूर चले जाओ ताकि इसके जुल्म से बच सको, इसके सितम से बच सको। चुनांचे लोगों ने फैसला किया, अब यहाँ से कहीं दूर चलो, कहीं दूर में जाकर पनाह ले लेंगे तो इसके जुल्म से बच जाएंगे। ध्यान से सुनिए, जो बात आगे आएगी उसमें आप लज्जत महसूस करेंगे। अब वहां से लोग चले हैं, असहाबे कहफ वहां से चले हैं, चलते चलते रात हो जाती है। एक पहाड़ में वो पनाह लेते हैं, एक पहाड़ के खोह में पनाह लेते हैं, मगर साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। गौर से सुनिए, एक बात को आप ध्यान में रखिएगा। हजरात, कुत्ता जो साथ चला था, अब उसी गार में कुत्ता भी पनाह लेना चाहता है। लोगों ने सोचा यहाँ रात गुजर कर लो, रात बसर कर लो, सुबह निकलेंगे फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। लेकिन जब रात को लोगों ने वहाँ पनाह लिया है, कुत्ता भी साथ साथ है, लोगों ने फैसला लिया। कुत्ते की आदत यह है, इंसान को देखेगा वो भूकेगा, इंसान को देखेगा वो चीखेगा, इंसान को देखेगा तो वो आवाज लगाएगा। हम लोगों ने यहाँ पनाह लिया है, अगर जालिम बादशाह का सिपाही हम लोगों की तलाश में आया, कुत्ता उसे देखेगा, वो चीखना शुरू करेगा, वो भौंकना शुरू करेगा। उस आने वाले सिपाही को हम लोगों के इस पनाह लेने की खबर मिल जाएगी, फिर उन पर जुल्म किया जाएगा, मुझे पकड़ कर लिया लेकर चले जाएंगे। लिहाजा इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ। अब कुत्ते को धुतकारा जा रहा है, कुत्ते को धुतकारा जा रहा है, कुत्ते को भगाया जा रहा है, मगर कुत्ता भागने का नाम नहीं लेता, कुत्ता वहां से भागने को तैयार नहीं है।
लोगों ने फैसला लिया अब इसे मारा जाए, लोगों ने मारना शुरू किया मगर कुत्ता भाग नहीं रहा है, कुत्ता राह फरार इख्तियार करता नहीं है। लोगों ने फैसला किया ऐसा करो ये भागता नहीं है तो इसे इतना मारो कि ये मर जाए। चुनांचे लोगों ने मारना शुरू किया है, अब पत्थरों की बरसात की है उस कुत्ते पर मगर कुत्ता बेजुबान है, कुत्ता कुछ बोल लगी रहा है मगर भागने को भी तैयार नहीं। अब कुत्ते ने जब ये समझ लिया अब मुझे मार दिया जाएगा, ये लोग जान से मार डालेंगे, अब कुत्ता बेबस हो चुका है। खुदा की बारगाह में वो कुत्ता फरियाद करता है, ए परवरदिगार, ए पूरी कायनात के मालिको मुख्तार, ये तेरे नेक बंदे हैं, मैं तेरे नेक बंदों की सोहबत में रहना चाहता हूँ, अल्लाह वालों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अच्छों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं सच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अल्लाह वालों की खिदमत में रहना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग भगा रहे हैं, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये लोग मुझे धुतकार रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। ये मेरे परवरदिगार मुझे इंसान जैसी जुबान दे दे ताकि मैं फरियाद करूं, मेरी जुबान ये समझ ले, मेरी आवाज ये समझ ले। परवरदिगार आलम का करम देखो, कुत्ते को परवरदिगार ने इंसान जैसी जुबान अता फरमा दी। अब कुत्ता बोल रहा है, इंसान की जुबान में बोल रहा है, इंसानों जैसी बोली बोल रहा है। अब अल्लाह वाले समझ रहे हैं ये कुत्ता फरियाद कर रहा है, कुत्ता कह रहा है ए अल्लाह वाले मुझे मत मारो, ए अल्लाह वाले मुझे मत भगाओ, ए अल्लाह वाले मुझे दूर मत करो, मैं तो आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ, अल्लाह वालों के साथ रहना चाहता हूँ। किसी की आमद पर चीख नहीं लगाऊंगा, किसी की आमद पर भूकूंगा नहीं, किसी की आमद पर मैं आवाज नहीं लगाऊंगा, किसी की आमद पर चीख नहीं मारूंगा, मुझे अपने साथ रहने दो, मैं अल्लाह वालों के साथ रहना चाहता हूँ, अच्छों के साथ रहना चाहता हूँ, सच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। उन अल्लाह वालों ने असहाबे कहफ ने समझ लिया ये कुत्ता नहीं भूकेगा, ये रहने की इजाजत मांग रहा है, अच्छों की सोबत में रहना चाहता है, जानवर है मगर सच्चों के साथ रहना चाहता है, ये जानवर है मगर अल्लाह वालों के साथ रहना चाहता है। अब इजाजत मिल गई उस कुत्ते को वहां रहने की। अब ज्यादा तवील करना नहीं चाहूंगा मैं बातों को, याद रखो मुसलमानों, कुरान में इसका तस्करा हो चुका है कि जब असहाबे कहफ जन्नत जाएंगे तो साथ साथ वो कुत्ता भी जन्नत जाएगा, साथ साथ वो कुत्ता भी जन्नत जाएगा। मैं कहता हूँ जब अल्लाह वालों की सोबत में रहने वाला कुत्ता जन्नत जा सकता है तो गुलाम मुस्तफा अल्लाह वालों की सोबत में रह के जन्नत क्यों नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं जरा हाथ उठाएं। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात ये हो रही है कि अच्छों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, नेकों के साथ रहो, अल्लाह वालों के साथ रहो। आपको नमाजियों के साथ रहना चाहिए, आपको हाजियों के साथ रहना चाहिए, आपको तहज्जुद गुजारों के साथ रहना चाहिए, आपको तकवा शिआरों के साथ रहना चाहिए। मगर आप माशरे का जायजा लीजिए, आप समाज का जायजा लीजिए, अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए। आप अंदाजा ये करेंगे 95% लोग ऐसे मिलेंगे, 95% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो लोग बुरों की सोहबत में रहना पसंद करते हैं, गद्दारों की सोहबत में रहना पसंद करते हैं, शराबियों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो मकान जिसकी बिल्डिंग बड़ी है, जो 2 नंबर का काम करने वाला होता है, जो 2 नंबर की कमाई करने वाला होता है, जो हराम की रोजी हासिल करने वाला होता है, उसके यहाँ जमात नजर आएगी, वही काफिला भी नजर आएगा, वही एक टोली भी नजर आएगी, लेकिन नमाजियों के साथ रहने वाला नजर नहीं आता, हाजियों के साथ रहने वाला नजर नहीं आता, अच्छों के साथ रहने वाला नजर नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसे आप अच्छा कहते हो जो शराब पी रहा है? क्या आप उसे अच्छा कहते हो जुआ की महफिलों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? क्या आप उसे अच्छा कहते हो जो 2 नंबर की कमाई करके चाय नोशी पर अपने दरवाजे पर सैकड़ों की भीड़ जमा करने वाला होता है, लेकिन वही भीड़ जमा होती है एक प्याली चाय पर लुट जाने वाले लोग। जरा सोचे, गुनाहगार है मगर उसके साथ रहते हैं, खताकार है मगर वही रहते हैं, वो पापी है मगर वही रहते हैं। लोगों याद रखो, अच्छों के साथ रहोगे तो असर अच्छा होगा, बुरों के साथ रहोगे असर बुरा होगा।
अच्छों के साथ रहना सीखिए, सच्चों के साथ रहना सीखिए। क्यों नमाजियों के साथ रहने वाले लोग नजर नहीं आते? किसी नमाजी के दरवाजे पर सुबह सुबह भीड़ क्यों नहीं लगती है? किसी हाजी के दरवाजे पर भीड़ क्यों नहीं लगती है? क्या एक नमाजी को 10 प्याली चाय पिलाने की सलाहियत नहीं है? क्या एक हाजी साहब को 50 प्याली चाय पिलाने की सलाहियत नहीं है? है, लेकिन वहां क्यों नहीं पहुंचते? कि 2 नंबर की कमाई वहां लगी है, हराम की कमाई वहां लगी है। देखिए, मैंने पहले कहा था मेरे जुमले भले तल्ख होंगे मगर सच्चाई यही है। प्यारे मुसलमानों, आप जरा गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। माशरे में बेचैनी क्यों है? समाज में बेचैनी क्यों है? हमारे माशरे में बेचैनी क्यों है? हमारी सोसाइटी में बेचैनी क्यों है? इस बेचैनी का सबब क्या है? अच्छे लोग नजर नहीं आते, सच्चे लोग नजर नहीं आते। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, हम अपने माशरे का जायजा ले, अपने समाज का जायजा ले। हम ये पाएंगे प्यारे मुसलमानों, एक आदमी को दूसरे की फिक्र नहीं होती। एक माशरे में सैकड़ों लोग जिया करते हैं, लेकिन कोई शराबी भी रहता है, कोई जुआरी भी रहता है, कोई बेनवाजी भी रहता है, कहीं हाजी भी रहा करते हैं। इसी माशरे में नेकोकार भी रहते हैं, इसी माशरे में कुरान की तिलावत करने वाले भी लोग रहा करते हैं। अब मैं अगर आपसे कहना चाहूंगा, ए नमाजियों उससे दूर रहो, ए हाजियों उससे दूर रहो, ए नेकोकारों उससे दूर रहो। आप कहेंगे मौलवी बड़ी अजीब बात करते हो, हमारे माशरे में वो भी रहता है, हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं? तो ए पकड़ी पकोही के मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों से अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप सच्चे लोग हो, अगर आप वाकई अच्छे लोग हो, आप रसूल आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हो, मुबारकबाद के लायक हो, सवाब का हकदार आप बन सकते हैं। लेकिन एक अच्छा काम करो, पैगाम दे रहा हो, इसे नोट कर ले। अगर हर काम अच्छे आप करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे नौजवानों की टीम आगे बढ़ती है, हमारे नौजवानों की टोली आगे बढ़ती है, नौजवानों का काफिला आगे बढ़ता है। अपने अब्बू से लोग कहते हैं, अब्बू जान आप घर में रहिए, दादा जान आप घर में रहिए, चाचा जान आप घर में रहिए। हम नौजवानों की टीम निकल रही है, मामला आया है सामने, हम लोग उससे निपट लेंगे, हम लोग उससे सर कर लेंगे। मसला सामने खड़ा हुआ है, उसका हल हम लोग निकालेंगे। हर मसले का हल निकालने के लिए नौजवानों की टीम आगे बढ़ती है, नौजवानों का काफिला आगे बढ़ता है। तो आज मैं उन नौजवानों से अर्ज करना चाहूंगा जो रसूल आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं, याद रखो, अगर माशरे में शराबी हो तो आप उस शराबी के पास जाओ, आपकी टीम जाए, आप नौजवानों का काफिला पहुंचे, शराबी से कहे कि तौबा करो, जुआरी से कहे कि तौबा करो, ज़िनाकार कोई हो तो उससे कहे तौबा करो। अगर तौबा तुम करते हो तो माशरे में रहने देंगे, और अगर तौबा नहीं करते हो हम अपने माशरे में रहने नहीं देंगे, हम समाज में तुझे रहने नहीं देंगे, अपनी सोसाइटी से बाहर कर देंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है, ये काम नहीं हो सकता है। अरे वो कर रहा है तो करने दीजिए, वो जिना कर रहा है तो करने दीजिए, वो खता कर रहा है तो करने दीजिए। हम तो अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, हम तो अपने घर में तिलावत करते हैं, हमारे घर में तो तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, हमारे घर में तो अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं लगाई जाती है। गुनाह वो करता है वो समझे। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ठीक है आप नमाज पढ़ते हो, बरकतें आपके घर में क्यों नहीं हो रही है? आप तिलावत कर रहे हो, बरकतें क्यों नहीं नाजिल हो रही है? आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हो, फिर भी परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो आपका खादिम बहुत अच्छी बात अर्ज करना चाहेगा, माशरे में आप रहकर आप तिलावत भी कर रहे हो मगर रहमतों से दूर हो रहे हो, नमाज पढ़ते चले जा रहे हो मगर बरकतों से दूरी क्यों है? हजरात तो सुन लीजिए, इसी माशरे में जहां आप रहते हैं उसी मोहल्ले में गुनाह भी हो रहा है, उसी मोहल्ले में ज़िना भी किया जा रहा है, उसी मोहल्ले में शराब भी लोग पी रहे हैं। उसी शराबी की उस बुरी हरकत की वजह से मोहल्ले से रहमत रूठ कर चली गई है, खुदा का फजल बरसना बंद हो चुका है। आप कहेंगे ए मौलवी साहब बड़ी अजीब बात कर रहे हो, लेकिन सुनिए मैं अजीब बात नहीं बहुत सच्ची बात कर रहा हूं। गुनाहगार एक होता है माशरे में, खताकार एक होता है माशरे में, ज़िनाकार एक होता है समाज में, लेकिन पूरा माशरा उससे इफेक्टेड होता है, पूरा माशरा मुतासिर होता है, पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है। एक गुनाह करने वाला माशरे में गुनाह करता है मगर पूरा माशरा बिगड़ जाता है, पूरा समाज बिगड़ जाता है, पूरी सोसाइटी बिगड़ जाती है। आप कहेंगे ये बात अब तक नहीं समझ में आई है, गुनाह वो अपने घर में करता है तो उसका बुरा असर हमारे यहाँ कैसे होगा? आप तो बारहा बोला करते हैं, आप सुनते भी चले आ रहे हैं, तालाब की एक मछली जब सड़ जाती है तो उसका सारी मछलियों पर उसका असर चला जाता है। लोग कोशिश करते
کرتے ہیں सरीख हुई मछलियों को निकाल दिया जाए। मैं ये नहीं कहता गुनाहगार को खत्म कर दिया जाए, गुनाहगारों को माशरे में न रहने दिया जाए, लेकिन याद रखिए अगर नौजवानों की टीम ने यह फैसला कर लिया हमारे माशरे में कोई गुनाहगार नहीं होगा, तो नौजवानों के अंदर यह सलाहियत है कि गुनाहगार को उस गुनाह से उसे तौबा भी कराया जा सकता है। तुम तौबा करो ताकि हमारे माशरे में रहने का हक हासिल हो जाए, समाज में रहने का हक हासिल। गुनाह एक इंसान करता है, पूरा माशरा तबाह होता है, पूरी सोसाइटी तबाह होती है, पूरी सोसाइटी बर्बाद होती है। आप कहेंगे जरा और करीब कीजिए, मैं अर्ज करूं, तैयार हैं आप? कैसे पूरे माशरे पर उसका असर होता है सुनिए। गुनाहगार एक होता है, पूरा माशरा मुतासिर होता है, पूरा समाज बिगड़ता चला जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर चंद लोग आते हैं, चंद लोग आए, दस्तक दिया, मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाते हैं। गौर से सुनिए, कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या काम है? गौर से सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब क्या मिला उनकी कौम की तरफ से? आप अल्लाह के नबी हैं, आप मूसा कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, बारिश नहीं हो रही है, बारिश न होने की वजह से इंसान मरता चला जा रहा है, लोग मरते चले जा रहे हैं, कितने जानवर भी मर चुके हैं, जमीन की घास मर चुकी है, जमीन फटती चली जा रही है। जरा सा साउंड ठीक कीजिए, पहले ठीक था लेकिन इको कम कीजिए तो बात समझ में आएगी। हजरत गिरामी गौर से सुनिए मेरे एक एक जुमले को। आप कहा कि घास मरती जा रही है, जानवर मरते चले जा रहे हैं, इंसान मरते चले जा रहे हैं, बारिश नहीं होती है। हजरात एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए। बारिश के मौसम में बारिश होनी चाहिए कि नहीं, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़नी चाहिए, सर्दी के मौसम में सर्दी पड़नी चाहिए। लेकिन आप आज 8 साल से देख रहे होंगे, 7-8 साल से ये देखा जा रहा है, कहत साली आ रही है, किसान तरस जाते हैं, बीज लगाना चाहते हैं, धान बोना चाहते हैं, बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हो जाया करते हैं। बेमौसम बारिश हो रही है, गर्मी के मौसम में गर्मी आती है मगर देर से आती है, सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है मगर कम सर्दी पड़ती है। जबकि सर्दी का मौसम आए तो कड़ाके सर्दी होनी चाहिए, जबरदस्त सर्दी पड़नी चाहिए, बरसात के मौसम में झमाझम बारिश होनी चाहिए, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़नी चाहिए, मगर गर्मी का मौसम आता है, गर्मी पड़ती नहीं है, शिद्दत की गर्मी नहीं पड़ती है, शिद्दत की सर्दी भी नहीं होती है, झमाझम बारिश भी नहीं होती है, और अगर बारिश हो भी तो बेमौसम बारिश हो रही है, ठंडी बेमौसम हो रही है, गर्मी बेमौसम पड़ती चली जा रही है। आखिर मौसम ने मिजाज क्यों बदल दिया है? मौसम ने अपना मिजाज क्यों बदल दिया है? होना तो यही चाहिए, मौसम के लिहाज से गर्मी हो, मौसम के लिहाज से सर्दी भी हो, मौसम के लिहाज से बारिश भी हो, लेकिन मौसम के लिहाज से बारिश नहीं हो रही है, सर्दी भी नहीं पड़ रही है, सर्दी भी नहीं पड़ती है, गर्मी भी नहीं पड़ती है, बारिश भी नहीं होती है। मौसम ने मिजाज क्या बदला? तो जवाब ये होगा, मौसम ने मिजाज इसलिए बदला है कि खुदा की रहमत रूठ गई है तो मौसम ने मिजाज बदल दिया है, रहमतें रुक गई है, मौसम ने मिजाज बदल दिया। मौसम ने मिजाज क्यों बदला? माशरे के लोगों का मिजाज बदल गया है, अल्लाह के बंदों का मिजाज बदल गया है, अल्लाह के बंदों का किरदार बदल गया है, तो मौसम ने मिजाज बदल दिया। क्यों बारिश नहीं होती? सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्यों आए हो? कहा बारिश नहीं होती, दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिश हो, इंसानों को जिंदगी मिले, जानवरों को जिंदगी मिले, जमीन की भी प्यास बुझ जाए। मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया मैदान में चलो, फला मैदान में चलो, वहीं से हम लोग दुआ करते हैं। चुनांचे मूसा कलीमुल्लाह ने भेजा, मूसा कलीमुल्लाह भी तशरीफ ले जाते हैं। जब वहां पहुंचे तो देखा मैदान भरा हुआ है, सुभान अल्लाह, मैदान भरा हुआ है। मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया बैठ जाइए। जैसे आप लोग बैठे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, ए मेरे माबूद, ए रहमत नवाज मौला, तू बड़ा करीम है मौला, तू बड़ा रहीम है मौला। मौला बारिश नहीं हो रही है, ये तेरे बंदे हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, तेरी बड़ाई बयान करते हैं, तेरी किबरियाई बयान करते हैं। मौला ये तेरे बंदे हैं मगर पानी
पानी के बिना मरते जा रहे हैं, जानवर मरते चले जा रहे हैं, जमीन की घास मर चुकी है, इंसान पानी को तरस रहे हैं। ए मौला तू रहमत की बारिश बरसा दे, ए मौला तू पानी बरसा दे ताकि इंसानों को जिंदगी मिल जाए, जानवरों को जिंदगी मिल जाए। मौला ने जवाब दिया, ए मेरे कलीम दुआ मत कीजिए, आपकी दुआ कबूल लगी की जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कलीमुल्लाह दुआ कर रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं और जवाब मिलता है दुआ मत कीजिए, दुआ कबूल लगी की जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मैं तेरा कलीम हूँ, मैं तेरा नबी हूँ, मेरी दुआ कबूल क्यों लगी होगी? तो जवाब मिला, ए मेरे कलीम, ए मूसा कलीमुल्लाह, जहां बैठकर आप दुआ कर रहे हैं उस मजमे में बहुत बड़ा गुनाहगार बैठा हुआ है, उसी गुनाहगार की वजह से मैंने पानी बरसाना बंद कर दिया है, पानी बरसाना बंद कर दिया है। उस गुनाहगार को पहले उस मजमे से भगा दो, तब तेरी दुआ कबूल कर ली जाएगी, तेरी दुआ कबूल कर ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाएं एक बार। सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने ऐलान फरमाया, ए वो कौन है गुनाहगार जिसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पानी बरसाना बंद कर दिया है? वो इस मजमे से चला जाए, वो इस मजमे से निकल जाए, वो इस मजमे से भाग जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, हम में से वो कौन आदमी है जो गुनाह नहीं करता है, जिससे खता नहीं होती है, जिससे भूल लगी होती है? हाँ हाँ, किसी से छोटा गुनाह होता है, किसी से बड़ा गुनाह हो जाया करता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँ हम में से सब कोई गुनाहगार है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि इनमें से कौन है वो शराबी, शराबी यहां से निकल जाए, कोई ज़िनाकार है तो जानी निकल जाए, कोई अगर खताकार है तो वो निकल जाए। मैं कहता हूं आप में से कौन ऐसा आदमी होगा जो भागने को तैयार होगा, कौन यहां से निकलने को तैयार होगा? हर आदमी यही सोचेगा, ज़िनाकार सोचेगा अगर निकल जाऊंगा तो समझ लेंगे सब लोग कि यही ज़िनाकार है, यही जानी है, यही ज़िना करता है, यही बहुत बड़ा गुनाहगार। मेरे ऐब खुल जाएंगे, जिस ऐब पे परवरदिगारे आलम पर्दा डालता रहा, मेरे ऐब को छुपाता रहा, मेरे गुनाहों पे पर्दा डालता रहा, आज वो ऐब खुल जाएगा, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा। यहां से निकलने में भलाई नहीं है, लेकिन अगर ना निकला तो मूसा कलीमुल्लाह की दुआ कबूल नहीं होगी, और जब दुआ कबूल नहीं होगी पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, इंसानों की जान जाएगी, जानवरों की जान जाएगी, लोग पानी को तरस जाएंगे। चला जाता हूं तो रुसवाई होगी, ना जाता हूं तो पानी नहीं बरसेगा। आखिर क्या किया जाए मेरे दोस्त और बुजुर्गों? परवरदिगारे आलम की बारगाह में वो शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में तौबा कर रहा है, ए मेरे परवरदिगार मैं छुप छुप के लोगों से गुनाह करता रहा, मगर तू सब देखता रहा, मौला आज भी मुझे बचा ले, मेरे जिस गुनाह की वजह से तूने पानी बरसाना बंद कर दिया है, ए मेरे परवरदिगार आज मैं उस गुनाह से तौबा कर रहा हूं, आज के बाद वो गुनाह कभी ना करूंगा, ए मेरे मौला वो खता कभी ना करूंगा, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, आज के बाद वो गुनाह ना करूंगा, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। दिल ही दिल में उसने तौबा किया, मौला करीम ने उस गुनाहगार की तौबा को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। तौबा कबूल फरमाना था, बगैर बादल के पानी बरसना शुरू हो जाता है। मूसा कलीमुल्लाह ने देखा आसमान की तरफ बादल लगी है मगर पानी बरस रहा है। अर्ज किया मेरे परवरदिगार यहां से कोई भागा नहीं है, यहां से कोई निकला नहीं है, यहां से कोई रफू चक्कर हुआ नहीं है। जब गुनाहगार भागा नहीं पानी कैसे बरसाना शुरू किया? मौला करीम ने जवाब दिया, ए मेरे कलीम जिस गुनाहगार की वजह से मैंने पानी बरसाना बंद किया था उसने अपने गुनाह से तौबा कर लिया है, उसकी तौबा मैंने कबूल फरमा लिया है। नारे तकबीर, मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, उसकी तौबा कबूल फरमा लिया है, इसलिए पानी बरसाना शुरू कर दिया। ए मेरे परवरदिगार ये तो समझ में बात आ गई, उसकी तौबा तूने कबूल फरमा लिया, मगर जिसकी तौबा तूने कबूल फरमा लिया अब तो वो तेरा नेक बंदा है, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ, मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ, मैं उस बंदे का पता दे दे, उस बंदे का नाम बता दे, उसकी निशानदेही फरमा दे। मौला बड़ा करीम है, जवाब दिया मेरे कलीम जब तक वो गुनाहगार था गुनाह करता रहा मैं उसको रुसवा ना होने दिया, अब वो गुनाहगार नहीं नेकोकार हो गया है, अब तो वो नेक हो गया है,
اب اس کا پتہ بتا کر رسوا کیسے ہونے دوں گا؟ جب کل چھپاتا رہا آج بھی اس کے عیبوں کو چھپاتا ہوں، اس کا پتہ نہیں بتا۔ ہم اتنے گناہگار، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپایا جا رہا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے، گناہگاروں گناہ سے توبہ کر لو۔ چاہتے ہو معاشرے میں برکت ہو، چاہتے ہو کہ گھروں میں برکتوں کا نزول ہو، چاہتے ہو محلے میں برکتیں نازل ہو، چاہتے ہو کہ محلے میں رحمتیں نازل ہو، تو گناہوں سے توبہ کرو۔ برے لوگ جو ہیں اسے سمجھاؤ، ہماری ٹولی جائے گی، ہماری ٹیم وہاں پہنچے گی، نوجوانوں کا قافلہ پہنچے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ کن نوجوانوں کی بات وہ گناہگار مانے گا؟ کن نوجوانوں کی بات وہ خطا کار مانے گا؟ کس کی باتوں پہ وہ توبہ کرے گا؟ جی کر لیتے ہیں حضرات۔ خطیب اعظم یورپ و ایشیا، آبروئے فن خطابت، پیر طریقت، عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج الشاہ ابو الحقانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، امریکہ افریقہ یعنی پوری دنیا میں خطاب فرمانے والے خطیب اعظم کی آمد ہو رہی ہے۔ استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ خطیب اعظم یورپ و ایشیا، فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ الحاج شاہ محمد حسین ابو الحقانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی ممبر نور پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، جن کی خطابت سماعت کرنے کے لیے سامعین کو اپنے ذہن فکر کو باوضو کرانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، باوضو ہونا پڑتا ہے تب ان کی خطابت سماعت کرتے ہیں لوگ۔ آپ ان کی خطابت کو سماعت کریں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ان کی تقریر ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سن سن کر کے بد عقیدے حدیث رسول کی برکت سے ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے عقیدے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، اور جو میرے نبی کا، سلف صالحین کا، اکابرین کا، اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے جی لگائیے، میں 2-3 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا ہم گناہگار ہیں، کہ ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم بہت بڑے پاپی ہیں، اس کے باوجود ہمیں گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، گناہوں کو چھپایا چلا جا رہا ہے، مگر ہم یہ محسوس نہیں کرتے پروردگار کتنا بڑا کریم ہے، وہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بے نمازی بن کر اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا احساس ہمیں نہ ہو سکا۔ حضرات میں ان نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، نوجوانوں ہر کام کیا کرتے ہو، آپ تاجر بھی ہو، آپ تجارت بھی کرتے ہو، آپ ملازمت بھی کیا کرتے ہو، آپ مزدوری بھی کیا کرتے ہو، ہر نوجوان کہیں نہ کہیں سٹل ہو چکا ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اور ہر کام کے لیے وقت نکال لیا جاتا ہے، مگر کیسے بندے ہو کہ بندگی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہو؟ کیسے بندے ہیں آپ، بندگی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھو مسلمانوں، جب آپ اپنی پیشانی کو آباد کرو گے سجدے سے، جب آپ مسجد کو آباد کرو گے سجدے سے، تو آپ بھی آباد ہوتے رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانوں، پہلے آپ نمازی ہو جاؤ، پھر گناہگار کے پاس جانا، وہ گناہگار کہے گا نمازی آیا ہے توبہ کرانے کے لیے، اللہ کا بندہ آیا ہے توبہ کرانے۔ آپ جب نمازی بن کر کے جاؤ گے، وہ انہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نمازی ہونے کی برکت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ کتنے نوجوان ہیں
जो रसूल आजम कॉन्फ्रेंस के इनकाद करने में हिस्सा लेते हैं वो लोग नमाजी बनकर के गुनाहगारों से गुनाहों से तौबा करवाएंगे। हजरात, मैं अगर कहूं कि हाथ उठाइए आप कितने लोग हैं तो बहुत सारे लोग हाथ उठा देंगे, लेकिन याद रखिए यहां आपको हाथ उठा देने से नहीं, जब मेरी बात दिल में उतर जाएगी, जब आपको चोट पहुंचेगी, आपको यह एहसास होगा कि मेरे मौला ने मुझे बंदगी ही करने के लिए पैदा फरमाया है, यह एहसास जब हो जाएगा तब आप नेक हो जाएंगे, तब आप अच्छे हो जाएंगे, तब आप सच्चे हो जाएंगे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा अलमिया यह है, आज जलसे में जैसी तकरीरें लोग सुनने के आदी हो गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें बुरा मत कहिए, आप उन्हें बुरा मत समझिए, जो नबी के बारे में गलत सोच रहा हो वो बुरा नहीं तो और क्या कहा जाएगा, जो नबी के बारे में अच्छा ख्याल न रखता हो वो अच्छा, वो गलत नहीं और क्या कहा जाएगा, वो यकीनन गलत है, वो यकीनन बुरा है। लेकिन मेरे मसले का हल उसके खिलाफ बोल लेने से नहीं निकलेगा, मेरा मसला उसके खिलाफ तकरीर सुन लेने और कर लेने से मसले का हल नहीं निकलेगा। आज हमारे जलसों में हदीसे रसूल सुनने के आदि लोग नहीं खोते, देवबंदी के खिलाफ बोलिएगा मौलाना, वहाबी के खिलाफ बोलिएगा मौलाना, तबलीगी जमात के खिलाफ बोलिएगा मौलाना। यहाँ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में देवबंदी नहीं था, बहुत लोग हो गए हैं, बहुत लोग जमाती हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं? आपने हर कोशिश किया है तकरीरें उसके खिलाफ हो ताकि अकीदे की हिफाजत हो, तकरीर उसके खिलाफ हो ताकि ईमान की हिफाजत हो, मगर मैं पूछना चाहता हूँ आए दिन उसके खिलाफ तकरीरें होती चली जा रही है, उसके खिलाफ तकरीरें हो रही है, लेकिन हमारे ईमान की हिफाजत नहीं हो रही है, अकीदे की हिफाजत क्यों नहीं हो रही है? उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, देवबंदियों की तादाद बढ़ रही है, वहाबियों की तादाद बढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ईमान क्यों लुटता चला जा रहा है, अकीदा क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? अगर उसके खिलाफ तकरीर सुनने से अकीदे की हिफाजत हो जाती तो अकीदे की हिफाजत होनी चाहिए, उसकी जमात में इजाफा नहीं होता, वो लोग नहीं बढ़ते, मगर हमारा ईमान लुटता चला जा रहा है, उनकी जमात में इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कहां जाता है? बेईमानों के पास। वो कहां जाता है? बेनमाजियों के पास जाता है। वो जहां जाता है जो तिलावत नहीं करता उसके पास जाता है और वो अपनी दवा देता है, फिर उसे अपना गर्विदा बना लेता है। आपके ईमान का लुटेरा वो हो जाता है, आपका ईमान लुट जाता है, आपका अकीदा बिगड़ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अकीदे के खिलाफ, उसके खिलाफ तकरीर कर लेने से हमारे ईमान की हिफाजत क्यों नहीं हो रही है? अकीदे की हिफाजत क्यों नहीं हो रही है? हमारे उलमा तो उसको वही जवाब देते हैं, उसके खिलाफ वही बोलते हैं, वही बोलते हैं जो आला हजरत बोल चुके हैं, जो मुजद्दिद आजम बोल चुके हैं, जो मुहद्दिस आजम बोल चुके हैं, जो मुफ्ती आजम ने जवाब दे दिया है, वही जवाब हमारे उलमा दिया करते हैं। मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहता हूं अपने उलमा की बारगाह में, अगर सच्चाई हो तो दुआओं से नवाज देंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज आपके स्टेज पर ऐसा खतीब है जो जरूरत के मुताबिक उसके खिलाफ बोलते हैं, उसका ऑपरेशन होता है, मगर अल्लाह ताला हदीस रसूल की बरकत से उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। मगर दर्जनों ऐसे लोग हैं जो उसके खिलाफ बोलता है तो सुन्नियत में इजाफा नहीं, हमारे अकीदे छोड़कर उसका अपना लिया जाता है, उसकी जमात में इजाफा होता चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक तरीका मैं आपको बताता हूं। ईमान लुटने के लिए वो कहां जाता है? अकीदा बिगाड़ने कहां जाता है? वो बेअमल के पास जाता है, बेनमाजी के पास जाता है। आप चाहते हो ईमान की हिफाजत हो, अकीदे की हिफाजत हो, हमारा ईमान न लूटा जाए, तो एक रास्ता आपका खादिम बताता है, उस रास्ते को इख्तियार कर लो, वो तरीका अपना लो, आपके ईमान की हिफाजत हो जाएगी। आप मुझसे पूछेंगे मौलवी जल्दी बता वो कौन सा तरीका है? आपका खादिम बोलेगा आपके घर का बच्चा नमाजी हो जाए, ईमान की हिफाजत होने लगेगी, अकीदे की हिफाजत होने लगेगी। जब आप नमाजी होंगे वो आने की जुर्रत ही नहीं करेगा, वो आपको बहकाने की जुर्रत ही नहीं करेगा। नमाजी बन के दिखाओ, आपके घर का आदमी अगर नमाजी हो जाए तो उस देवबंदियत का खात्मा होता चला जाएगा, वहाबियत का खात्मा होता चला जाएगा। उसके खिलाफ बोलेंगे, उस वक्त बोलेंगे जब जरूरत महसूस की जाएगी, बेजरूरत उसके खिलाफ नहीं, बल्कि हमें
وہ بولنا ہے جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ضرورت ہے. جو ہمارا خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ مقدس العالی کا خطاب ہوتا ہے، ایسا خطاب اگر سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، عقیدے کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کہا ہے آپ نے اگر غور سے سن لیا تو آپ سوچنا ہوگا ہمیں آج کے بعد کرنا کیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ نہ پنپیں بلکہ ہماری جماعت میں ادا ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. اچھے عمل کرو، اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، اور اچھے بننے کے بعد ان شرابی کے پاس جاؤ، گناہگار کے پاس جاؤ، خطاکار کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ میاں توبہ کر لو، تیرے گناہوں کی وجہ سے محلے کی برکت چلی گئی ہے، رحمتوں کا نزول رک چکا ہے. تم چاہتے ہو کہ معاشرے کا بھلا ہو، گناہوں سے توبہ کر لو، نمازی ہو جاؤ. جب ہمارے نوجوانوں کا قافلہ پہنچے گا وہ شرم محسوس کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، کہیں پر کوئی لغزش، کوئی خطا ہو گئی ہو تو اپنے مولا کی بارگاہ میں ان خطاؤں سے میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ میری توبہ کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. مخالفت کی ہواؤں کا سر کچلتا ہے، چراغ عشق و وفا آندھیوں میں جلتا ہے. یہ بات سچ ہی کہا ہے کسی مفکر نے، صلاحیت کا پتہ گفتگو سے چلتا ہے. مولانا جنید جمالی صاحب نے اپنی تقریر سے رسول اعظم کانفرنس کے انعقاد کا مقصد حل کر دیا. سب سے اہم اور قیمتی پیغام تو یہ دیا ہے کہ مسلمانوں خدا کے گھر میں سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ سجدہ زندگی کو ایک نئی پرواز دیتا ہے. اتارو چادر غفلت کو فوراً چاک کر ڈالو، مصلی تیری مسجد کا تجھے آواز دیتا. یہی تو جلسوں کا مقصد ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کمیٹی والوں نے بھی، مظہر اسلام کمیٹی والوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے. حویلی والے حقارت سے میری سمت نہ دیکھ، مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر بنانا ہے. اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے.